In industries because I deal mostly with corporates, in industries जहाँ पे regulation important होती है, जहाँ पे a professional sense prevails, वहाँ पे nobody would like to say and tell कि मैं किसी therapist के पास जाता हूँ, because that will have a direct effect on his promotions, on his demotions, on his increments, वो सब पे effect पड़ता है. Because उसकी अगर promotion के लिए भी करना है किसी ने, if somebody has to consider him for promotion, उसका psychological analysis करवाती हैं companies. And if he's उसके अंदर अगर ये लिखा हुआ है कि he's suffering from depression, or if he's taking some medicine for his mental health, so they would consider that, even you would. So this also plays into why people would never want to admit and report and even go seek help for any mental health cases. Right, fair enough. So when it comes down to the stigma revolving around therapy, one criticism that we tend to hear is this कि जो therapeutic intervention है वो westernized है, western cultures हैं, हम पाकिस्तानी हैं, हम एक certain religious group से ताल्लुक़ रखते हैं, हमारा culture, हमारी geography, it is all very different from the western world. So ये हमारे ऊपर apply होती भी है या नहीं, इसका हमें फ़ायदा हो भी सकता है या नहीं. So what do you have to say about that? राबे, आपने नाराज़ नहीं होना इस पे मेरी बात पे. Why would it be elitist? Why do you think people would say that this is an elitist activity, or somebody who's going to a therapist, it's something very elitist? Why? Because they have to pay 6 से 8 हज़ार घंटे के यार, 4 से 5 हज़ार. कौन, कितने पाकिस्तानियों के पास इतनी इनकम होगी, इतनी कैपेसिटी होगी कि वो किसी थेरेपिस्ट के पास या ऑनलाइन से 6 हज़ार या 8 हज़ार, लोग 20 हज़ार लेते हैं. So obviously when the more high price you make yourself, the more you are taking yourself out of the reach of the common people. देखिए कासिम, I'm sorry I cut you off, but यहाँ बात elitist की नहीं है. Of course, anything with a high value is going to be high priced, right? It doesn't need to be. I'm talking about the origins of therapy, कि वो एक कोट एम कोट वेस्टर्नाइज कल्चर से उसके रूट्स हैं. हम उससे रिलेट नहीं कर सकते क्योंकि जितनी भी स्टडीज़ हैं वो सारे कॉकेशियन लोगों के ऊपर हुई हैं, देसी लोगों के ऊपर तो नहीं हुई. हमारे प्रॉब्लम्स डिफ़र करते हैं उन लोगों से. सो देन वाई वुड वी रिलाई ऑन समथिंग दैट वाज नॉट इवन स्टडीड ऑन आवर, लाइक दैट वाज नॉट इवन केटर टू आवर इंडिजिनस नीड्स. दैट वाज माई क्वेश्चन. अच्छा अरीशा, इसमें I have seen a lot of studies being done in the subcontinent में तो बहुत ज़्यादा हुई हैं. Okay. ये SAARC के लेवल पे जो कंट्रीज़ आते हैं हमारे साथ के सकते हैं, इंडिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, भूटान, म्यांमार, श्रीलंका, मालदीव्स, अफगानिस्तान, ईरान, इनमें काफ़ी स्टडीज़ हुई हैं. So it's not कि this reach all. Okay. So we have enough evidence to support कि we as humans don't think ऐसा कुछ नहीं है जो कि वहाँ पे कुछ अलग है जो कि हमारे ऊपर अप्लाई नहीं हो सकता. Everything has to be regionalized. Everything has to be catered for the regional population. And I've seen many wonderful psychiatrists and psychotherapists who are able to convert into who are able to engage with the local population using the same methods that we have studied all together. But मुझे लगता है कि when it comes to the point of being elitist, it's because it's only serving the elite. Right now, the majority of the professionals they're looking at, since they have to sustain themselves, they have to sustain a clinic, they have to sustain a staff, and they have to get a regular clientele, so they have to make their living. They have to pay their bills. So it is right now only serving the elite. तो फिर जो गरीब तबका है वो कहाँ जाए? हम उनको कैसे? Yes, please do. अच्छा, फर्स्ट द क्वेश्चन जो अभी आपने बात की कि द साइकोलॉजिस्ट दे आर गेटिंग 5,000 to 8,000 per sessions. Yeah, I would agree with it. There are a lot of psychologists which are doing it, but there are a lot of psychologists who are working for mental health जिनके इतना नहीं है. For example, क्योंकि I work with a very 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 low people. When they come with us, तो वहाँ पे ये होता है कि उनको, sorry I forgot, give me a minute.
जो हमारा लो तबका है ना, उसके लिए भी दे आर लॉट ऑफ डेडिकेटेड पीपल्स, लेकिन इन द एंड ऑफ द डे घर तो चलाना होता है, वही बात है। तो एक स्मॉल अमाउंट तो होती है। दे आर सम साइकोलॉजिस्ट दे ट्राई डूइंग दिस एज वेल, जो आप बात करें, उन्होंने थोड़े से कंसेशन वगैरह भी किए हैं लोगों के लिए, कुछ जो रिच हैं उनके लिए उतना, और जो लोअर तबका है उनके लिए करते हैं। तो दे आर वर्किंग, लेकिन वही बात है कि एक तो ये चीज़ भी है कि हमारे यहाँ पे लोगों को पता नहीं है कि थेरेपी होती भी है। आई वर्क इन शिफा, तो वहाँ पे यू नो कि देयर आर पीपल हु आर वेरी वेल, उनके पास काफ़ी अच्छी अमाउंट हो गया। दे सेड टू मी, टू वन ऑफ माई कलीग एज वेल, कि वी हैव नो आइडिया कि ये सर्विसेज प्रोवाइड भी की जाती हैं, ऐसा कुछ होता भी है। दे हैड नो आइडिया। जब हम लोग इस वाले तबके की बात करेंगे, दे आर लॉट ऑफ पीपल जिनको ये चीज़ आइडिया ही नहीं है कि इस तरह की सर्विसेज प्रोवाइड भी की जा रही हैं। एंड प्लस अगर आप अपने सेल्फ ग्रूमिंग के लिए थोड़ी सी अमाउंट आपको लगानी पड़ती है। जहाँ पे हम फिज़िकल हेल्थ की बात करते हैं ना, तो हम लोग फिज़िकल हेल्थ के लिए बहुत कुछ लगा ही रहे होते हैं। तो अगर मेंटल हेल्थ के लिए अगर हम महीने में अगर 3000 पे करते हैं एक साइकोलॉजिस्ट को, या 2 हफ्तों बाद पे करते हैं, तो आई थिंक सो दैट इज़ समहाउ रीज़नेबल अबाउट इट। मेरा आपसे अगला सवाल था, बिकॉज यू वर्क विद द कम्युनिटी अ लॉट, सो कंसिडरिंग द एडवांसमेंट्स इन द कल्चर, अभी हम बहुत टेक ड्रिवन कल्चर के अंदर हैं, तो हाउ डू यू थिंक कि टेक्नोलॉजिकल यूज़ जो है वो यूथ की मेंटल हेल्थ को डिस्टर्ब कर रहा है, और उसके अंदर किस किस्म के बिहेवियर्स हैं जो इमर्ज हो रहे हैं? I think it's very common knowledge now, because everybody knows that this our habits of doom scrolling and extremely long screen times, they're not doing us any favors. They're causing lots of ये जो हमारी एक जो डिजिटल कंपैरिजन की जो एक हैबिट बन जाती है, हमारी जो एक कोकून इनके बीच में हम आ जाते हैं। पहले तो ये कि हमारी सोसाइटी में जिस तरह हम लोगों ने भी बात की है कि कोलेक्टिवली वी हैव अ हैबिट ऑफ अवॉइडेंस, जहाँ पे मैंने भी पहले बात की थी कि वी डो नॉट हैव द डिफ़िकल्ट कन्वर्जेशंस, एंड हमारी वो कम्युनिकेशंस इतनी अच्छी नहीं है। तो अब जो डिजिटल जो हार्म हमें आजकल जो हो रहा है वो ये हो रहा है कि वी हैव यूज दिस प्लेटफॉर्म एज इमोशनल नंबिंग के लिए। हम लोगों ने अपनी हर चीज़ को अवॉइड करने के लिए वी स्क्रॉल इट डाउन एंड डाउन, and there are so many researches which are being done on doom scrollings, which basically indicate that individual who uses internet and who uses Instagram, they are suffering from more anxieties, they are suffering from more depressions, they are suffering from more problematic things. So this is a very very very, I will say, alarming thing, क्योंकि पहली वाली जनरेशन में ये चीज़ें नहीं थी। these are from our generation। ये हमारी प्रॉब्लमेटिक चीज़ें हमें जो फेस करने के लिए मिल रही हैं, क्योंकि इंटरनेट अभी बहुत ज़्यादा यहाँ पे है। इंस्टाग्राम का कंपैरिजन पहले नहीं था इतना, अब बहुत ज़्यादा कंपैरिजन है, ठीक है। व्हेन वी सी थिंग्स, व्हेन वी स्टार्ट लुकिंग एट अदर्स पीपल अकॉम्प्लिशमेंट्स, तो हम लोगों पे कंपैरिजन, जिस तरह आपने बात किया, वो करना स्टार्ट कर देते हैं। एंड हमारे पास पहले हो सकता है कि वो प्लेटफॉर्म्स हों, लेकिन हमारे पास अब वो प्लेटफॉर्म्स नहीं हैं जहाँ पे वी कैन एक्सप्रेस टू आवर सेल्फ ओपनली कि हम ये चीज़ें फेस कर रहे हैं। तो जिसकी वजह से वी आर सफरिंग मोर, जिसकी वजह से हमारी यूथ बहुत ज़्यादा सफ़र कर रही है, और हमारे एक इमोशनल नमनेस का एक जो कॉन्सेप्ट जो है ना, वहाँ से निकल रहा है। When we look at preventative health, mental health, are we more depending on these digital platforms again, rather than some human face? I think so. All of you have heard that ChatGPT is basically being used as an AI therapist right nowadays, and there are so many researches which are being done on it कि people feel more comfortable talking to an AI than talking to a real person। and जो isolation हम लोगों ने इसकी वजह से कॉज हो रही है, and जो AI tool है, there are so many researchers जो ये कहती हैं, बता रही हैं अभी हमें कि the AI is basically, it will tell you, it will make you feel good, it's not gonna work on your growth, it's just gonna make you feel good। and individual जो ये चीज़ बाबा यूज़ कर रहे हैं, तो it's getting so much harmful। I have a patient who used to use AI, और जब वो AI यूज़ करता तो ही यूज़ टू कंपेयर इट विद मी एंड हिम। तो वो कहता था कि आई गेट, क्योंकि ऑब्वियस बात है कि व्हेन यू आर इन थेरेपी तो आपको चीज़ें ऐसी भी बताते हो इंडिविजुअल के जो चीज़ों पे उनको वर्किंग की ज़रूरत है। तो फॉर देम वो चीज़ है कि दे आर लाइक इट्स बेटर टू हैव AI बिकॉज ही और शी विल एग्री टू मी। एंड दूसरी ये चीज़ है कि हाउ यू आर राइटिंग ऑन AI, आप पूरी इमेज नहीं दे रहे होते, आप अपनी साइड ऑफ स्टोरी सुना रहे होते हो, बहुत तरीके से समझा रहे होते हो, जिसमें ChatGPT आप ही का साइड लेता है।
तो इज़ बिकमिंग वेरी अलार्मिंग थिंग, और इसके ऊपर बहुत ज़्यादा रिसर्चेज अभी स्टार्ट हुई हुई हैं, और अभी इवन के पाकिस्तान की यूथ दे आर यूजिंग इट सो मच, ChatGPT को एज आई। Do you feel everyone is looking for that short term, with Yeah. the minimum effort, dopamine release, instant gratification, instant validation? येस, दे आर लुकिंग फॉर इट, क्योंकि ऑब्वियस बात है, जब मैं ChatGPT को बताऊंगी कि मेरा दिन बुरा गुजरा है एंड ही विल वैलिडेट माय फीलिंग्स, तो मुझे जो डोपामीन मिलेगा उससे आई वुड बी सेटिस्फाई, और उसमें मुझे मेरे अपने अंदर ऑब्वियस बात है, एवरी इंडिविजुअल में कोई ना कोई चीज़ें होती हैं जहाँ पे उनको वर्किंग की ज़रूरत होती है। हर इंसान के अंदर कोई चीज़ें होती हैं, अच्छी होती हैं, बुरी भी होती हैं, तो ChatGPT विल बी ओनली सपोर्ट यू ऑन स्टफ। तो इस Yeah, I'm just saying कि guys, like Rabe just said कि nothing आपको इस वर्कशॉप से, ये जो आज हम कर रहे हैं, या किसी भी 1 घंटे की वर्कशॉप या 1 घंटे की थेरेपी सेशन से, this will not help you maintain your mental health. We will all have to, on an individual basis and a collective basis, have to take some concrete steps. I hope we'll get to that in time, to make sure कि आज के दिन में आपने अपनी mental health को prevent करने के लिए किसी भी बुरी situation से कितने steps लिए, कितने actions लिए हैं आपने, and we'll get to that hopefully in a bit. Yes, thank you so much. So, I would want to go back to the problems that youth are facing at hand in today's day and age. तो मुझे आपसे जानना है कि what do you think कि schools और universities, colleges कौन से वो steps उठा सकते हैं to cater towards the youth with the problems that they're facing today, चाहे उनकी day-to-day anxieties होती है regarding their exams या peer pressure, drug use. What do you think कि स्कूल लेवल पे या टीचर्स, उस्ताद, वो किस तरीके से अपने आप को प्रोवाइड कर सकते हैं अपनी सर्विसेज को टू हेल्प दीज चिल्ड्रन एंड टू हेल्प देम सीक अवेयरनेस? That's a very pertinent question, Arisha. This is something that we're actually working on and campaigning for also, that we want to have some changes in our national curriculum, जहाँ पे हम इसकी डिटेल्स में I'll go I guess in a bit, लेकिन सबसे पहले तो ये कि to give the strength and the freedom of a child to be able to express themselves. वो अपनी जो भी इमोशनल स्टेट है उसको किसी जजमेंट या किसी बायस के फिल्टर के थ्रू सिर्फ इतना ही अगर हो जाए ना कि उसकी बात को बगैर किसी जजमेंट के सुन ले कोई, पहले तो उसको ये कॉन्फिडेंस दें कि आप अपने आप को इमोशनली एक्सप्रेस कर सकें और इन इमोशंस को प्रोसेस कर सकें एट देयर ओन टाइम. सो फर्स्ट इट्स अबाउट अवेयरनेस ऑफ व्हाट इमोशंस आर, व्हिच इमोशंस आर फेल्ट, हाउ टू प्रोसेस एनी इमोशन. सो इमोशनल अवेयरनेस एंड इमोशनल रेगुलेशन का तो स्टार्ट ये तो बहुत छोटी स्टेजेस में होना चाहिए. उसके बाद ये जो डीकपलिंग है ऑफ मेंटल हेल्थ सपोर्ट, मेंटल हेल्थ preventative mental health and this stigma of कि something is wrong with me, ये जितनी जल्दी स्टेज में हम उसको डीकपल या डिस्कनेक्ट करेंगे उतना जो बच्चा है उसको जल्दी इन चीज़ों की समझ आएगी और वो अपनी लाइफ के अंदर ये जो बेसिक प्रैक्टिस है उनको इम्प्लीमेंट कर पाएंगे. फिर जो तीसरा स्टेप है विच इज़ एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट इज़ टू डिस्कनेक्ट दिस स्टिग्मा फ्रॉम प्रिवेंटिव मेंटल हेल्थ. तो उसके लिए छोटी स्टेजेस में, छोटी क्लासेस में प्ले थ्योरी के थ्रू कुछ एक्टिविटीज़ या कुछ आवर्स इस काम को डेडिकेट करने चाहिए, जो हम कह रहे हैं, जो जिसके लिए हम गवर्नमेंट से बात भी कर रहे हैं, जहाँ पे हम करिकुलम में कुछ हम बच्चा अपने आप को पहले सबसे पहले तो ये कि शी शुड फील दैट ही इज़ इन अ सेफ स्पेस. जब वो उस सेशन में जब आते हैं वन इंटरवेंशन तो उसको नहीं कहेंगे, दैट्स मोर ऑफ अ पीरियोडिक सस्टेन्ड प्रैक्टिस. जब वो इन प्रैक्टिस पे आते हैं तो ही शुड फील कि ही इज़ इन अ सेफ प्लेस, ही विल बी लिसन टू, ही विल नॉट बी जज्ड, ही विल नॉट be viewed through a bias. There's no mistakes, there's just discoveries. Everybody is trying to help each other in that concentrated circle. So that is like a mini view of the world for the child. Once he learns, once he goes through those experiences, once he learns how to express himself freely, express his emotions, how he's feeling that time. It doesn't mean कि उसको अपने आप को फोर्स करना है खुश रखने के लिए, because he has to be honest about what his emotions are. So once
that part is taken care of, once he is able to understand his own emotions and able to relate his emotions and express his emotions, that will immediately have a positive effect on how he's working with his, how he's living with his family, his friends, his school life, his work life. All of these should have positive effects.